Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai 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 Ram Jai Ram Shri
महाराज जी और माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। और आज मैं एक बुक है बी लव नाउ, उसमें से एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी। और चैप्टर का नाम है आनंदमयी माँ। महाराज जी और आनंदमयी माँ, इस चैप्टर में दोनों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। और पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी बी लव नाउ में से, और उसके बाद मैं इसका हिंदी बताऊंगी। The name Anandmayi Ma means bliss-permeated mother. Nirmala Sundara Devi was born on April 30, 1896 in the village of Kheoda in Tripura district of East Bengal, now Bangladesh. Instinctively attracted to ceremonies and chanting at the village temple, the child Nirmala saw figures coming out of the temple statues. At times she was found distracted, looking into space, unaware of the world. Otherwise, she was a sweet and helpful child, much loved by her family and neighbors. In 1971, we were with Maharaj Ji at his ashram in Vrindavan, a pilgrimage place with many Krishna temples that's been a devotional center since the 14th century. Vrindavan has had a deep, playful mood of love ever since Krishna made love to 10,000 cowherd girls there. Anandmayi Ma was in residence at her ashram just a few blocks away. Maharaji sent us to see her. We didn't know what to expect. Anandmayi Ma's ashram is a more traditional Hindu scene than Maharaji's. We all dressed up in clean white clothes for the occasion. There were a bunch of us, but because so many devotees were already there, we were lost in the crowd. Anandmayi Ma was an ethereal, slight figure, swart and white, greeting devotees from a low platform. The atmosphere was oceanic, vast, and peaceful. It felt deeply familiar, like sitting at the kitchen table with your mother, but this was everyone's mother. Any separation between Ma and ourselves seemed to dissolve in the quiet flow. We went back every day she was there. During those few visits, Anandmayi Ma touched a very deep, pure, simple, and loving space within me, a feeling of pure spirit. She's a real one, a rare one, an ancient one, the only one. In her presence, you could not help but absorb something of the tremendous grace Indians have long attributed to such beings. At that time, she was in her mid-70s and seemed frail, bird-like, like leaf in the wind of time. Outwardly, she was an aging lady surrounded by rather orthodox Hindus who were very protective of her and didn't like impure foreigners touching her feet or handing her offerings. Our pure whites didn't cut it with them. Inwardly, there was a deep current of Shakti or spiritual energy flowing from her. She didn't care about social distinctions or being protected. That was from her devotees. As I sat before her, I began to realize why her followers were so intent on caring for her. She had so little ego that they were afraid she wouldn't take care of herself. She walked and talked, laughed and sang, though once she kept silent for 6 months. She ate, though for a long time, she ate only 9 grains of rice a day. Behind her eyes, there was a detachment, like someone looking at you from a great distance or through a telescope. It was kind of a puppet quality, as if there was nobody home. But simultaneously, with the emptiness, you felt her completely engaged and present, full of concern and affection for the devotees and everyone around. Her moods changed like weather. My feelings in her presence were profound, subtle, and hard to put into words. There was a tangible peace, a sense of completion and perfection, a deep relief from the thoughts and daily concerns that constantly press on the mind. Her every movement was mudra, a physical expression of the totality of being in that instant. She opened the way for you to feel God. Paramhans Yoganand met Anandmayi Ma in Calcutta about 1946 and later invited her to his ashram in Ranchi. He recorded their encounter in his book Autobiography of a Yogi.
including this dialogue. Yoganand says, "Please tell me something about your life." Ma says, "Father, there is little to tell." She spread her graceful hands in a deprecatory gesture. "My consciousness has never associated itself with this temporary body. Before I came on this earth, Father, I was the same. As a little girl, I was the same. I grew into a womanhood. I grew into womanhood. Still, I was the same. When the family in which I had been born made arrangements to have this body married, I was the same. And Father, in front of you now, I am the same. Ever afterward, though the dance of creation change around me in the hall of eternity, I shall be the same." My introduction to Anandmay Ma came through Maharajji. I knew him as my guru, but I hadn't really reflected much on that caring, maternal quality that is another aspect of the guru and such an integral aspect of God in India. When Maharajji said to see all women as their mother, it set off a sea change in my view of reality. Our Western Judo-Christian culture focuses so strongly on the father, we tend to overlook the mother. Anandmai Ma was not a philosophical treatise. She was a living, breathing woman for whom descriptions like enlightened or realized fall so short as to diminish her. Anandmai Ma's feminine qualities weren't just those of an individual woman. She was truly an incarnation of the divine, feminine, the goddess. She embodied the qualities of the mother that Maharaji spoke of with such affection. She showed many different aspects of the mother that Hindus revere. I never actually saw Maharaji and Anand Maima together in the flesh, although once I had a vivid dream of both of them. In the dream, they were like joyous, playful children. At the end, they walked down a path holding hands like kids. I felt intense joy when I awoke. I heard that one morning Maharaji started berating the women at his ashram for not taking care of him. Maharaji said, "You can't feed me. You people can't feed me or take care of me. I'm going to Ma. She will feed me." He set off for Anandmai's ashram and he kept saying, "She will feed me. I'm going to see Ma. She will feed me." Maharaji burst into the room at Anandmai's, interrupting a big darshan sitting. He was like a child of 5 with his blanket flying in all directions. He shouted at Anandmai sitting there, "Ma, feed me. Feed me, Ma." She just cracked up. Then they brought a huge meal. He tasted it and then they passed it out as prasad to all the devotees. He was calling her Ma and she was calling him Father, Ma and Pa. As with Ramakrishna, when Anandmai Ma was young, the custom in those times of uncertain health and short lives was child marriage. Nirmala's was arranged while she was quite young. She lived with her brother in law's family while her husband traveled to Dhaka and elsewhere to find work. Eventually, he found a position as manager of a private park in Dhaka called the Shahabag Garden. Nirmala joined him there and they set up a household. She maintained her duties as a Bengali housewife, cooking and cleaning, even though she would sometimes go into samadhi states, performing complex yoga asanas and mudras. At times, she would roll up on the floor in ecstasy, and the food would burn. Her awakening skirted insanity when she lost contact with the physical plane. Her husband fortunately realized her extraordinary qualities. Ultimately, he became her disciple. She was breathtakingly beautiful in those younger years, bathed in an unearthly radiance. She never became involved in the more down to earth aspects of marriage. Her God intoxication must have simply outshone all else. She later said her husband never even had a sexual thought. Anyway, if he had even an unconscious urge, she went into samadhi. Mother was staying on the first floor of the premises attached to Govindaji's temple. When the writer entered the room with two ladies with him,
It was about 11 p.m. There was one electric light on. On entering the room, they found Mother seated, smiling, beaming with joy. Her whole body shone like a ball of dazzling light, making the electric bulb look almost pale and red. Such wonderful radiance from a human figure was beyond all our conception. Her body shone with such an intensely soothing light that the whole room appeared to be filled with some divine ethereal presence. In Dhaka, Ma appeared to undergo intense bouts of spiritual practice. She later said she did not initiate these practices, rather, they seemed to work through her. She said she was following her khayal, which in the context meant a spiritual intuition or inner impulse. Affected by her obvious holiness, her transcendental states, and her luminous presence, devotees gathered around her. At the house, there were frequent get togethers for Kirtan. Ma cooked and everyone shared prasad. The sound of the divine name affected her deeply. She would drop whatever work she was engaged in and fall to the ground in ecstasy. Sometimes she would lie motionless, but other times she would balance on her toes, hands raised and eyes fixed without a flicker. Sometimes she would bend into yoga asanas or mudras, either standing absolutely still or swaying rhythmically with her heaving breath. Her dance might be gracefully undulating like a wave or whirling with incredible swiftness. Then her movement was like lightning, almost impossible to follow with the eye. Sometimes she would roll in ecstasy to and fro on the ground like a dry leaf driven before a storm. She was like a dynamo at such moments. The modest housewife who kept her face covered in front of strangers ran and danced oblivious to the world. Danny Goldman, Jagannath Das, and I had gone for darshan at Anandmay Ma's small ashram near Kankhal at Haridwar. We found Ma sitting on the steps of the little temple talking to the Vice President of India. There were a couple of hundred other people. Finally, the Vice President left and Anandmay Ma went into one of the rooms. Danny and I were talking and stayed behind until we were the last ones left in the darshan area. It was near dusk, food was cooking, and there was the sound of a conch and bells from the evening puja. Occasionally, we would see Anandmay Ma dressed in white, walking from one building to another, almost as if she were floating. Just seeing her filled us with waves of bliss. Finally, they told us to leave because the temple was closing. We got up to go, and just then Anand Mahima came out a side door and walked across the darshan area, right in our path. She looked as though she was sleepwalking. She hesitated just in front of us, looking past us, then stopped and allowed us to touch her feet. It was like being in the quiet of a deep forest and having a bird land on your shoulder or a deer come up and nuzzle you. A precious instant when you connect with something so pure, so untouched by the world, so elemental and free. It was a mysterious and intense moment. She continued on. We left the temple. There was no recognition. She didn't look at us. It was just darshan. We had touched something deep in ourselves. We had touched love itself. From about 1927, Anandmai, her husband, and a devotee called Bhaiji traveled about India, leading a peripatetic life that she continued for the next 55 years. People all over India came in contact with her and came to depend on her for spiritual guidance. As she played out the Leela of child, wife, and spiritual guide, she manifested from moment to moment the different aspects of the mother, the peaceful serenity of Uma, goddess of dawn, the loving delight of Radha, Krishna's playful consort, Kali's protective fierceness, Sita's dharmic perfection, and the mystical energy of Shakti, the manifest cosmos. She had no real personal identity. Sometimes she would take on the qualities of some other pure saint who had lived in the locale where she was.
She would allow that aspect to come through her and would begin to walk and talk like that saint. Her powers of endurance and patience were extraordinary. She didn't get tired. As she said to Yoganand, I am the same. And that applied all the time and wherever she was. Devotees were constantly trying to figure out and describe this amazing being in their midst. As she intimated on so many occasions, she manifested to devotees according to their individual spiritual needs. She had no other agenda of her own. So it was really no wonder that everyone saw her differently. With a pandit, she might discuss fine points of the Upanishads. With a poor farmer, the impending marriage of her daughter. With a sadhu, the course of his practice. She guided each person at his or her own level. Ma wouldn't allow them to keep food overnight in the ashram. She made them cook and distribute everything and then beg or buy fresh food the next day. Once, one of her devotees kept an extra bag of flour in case Ma might want food during the night. About 9 p.m., she came out and started asking for puris, flatbreads cooked in ghee or melted butter, which are delicious but quite heavy and buttery. You might eat two at a meal. Ma started eating. She ate and kept asking for more and more. She had eaten until she had eaten 64 puris. She said, don't you realize if I ate my fill, I would eat the entire universe? तो ये चैप्टर था माँ आनंदमयी का, और इसकी मैं हिंदी आपको थोड़ा बता देती हूँ आनंदमयी माँ के बारे में। आनंदमयी माँ का जो ओरिजिनल नाम था वो था निर्मला सुंदरी देवी, और वो 1896 में पैदा हुई थी त्रिपुरा, जो ईस्ट बंगाल में था, जो अब बांग्लादेश में है वहाँ पर। और जो भी मंदिर में पाठ पूजा कीर्तन होता था, चैंटिंग होता था, बचपन से उनका रुझान उस तरफ था। और उनको मंदिर की मूर्तियों में से उनको फिगर्स निकलती हुई उनको दिखाई देते थे स्वरूप। वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और अपने में खो जाती थी कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उनको होश ही नहीं रहता था। और अदरवाइज़ वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, एक बहुत हेल्पफुल बच्ची थी, और उनके परिवार वाले और बाकी सब लोग जो थे, नेबर्स पड़ोस में थे, सब लोग उनको बहुत बेहद प्यार करते थे। 1971 में 1971 में जब हम लोग महाराज जी के साथ थे वृंदावन आश्रम में, हम लोग तीर्थ पे गए हुए थे वृंदावन, और तब महाराज जी के आश्रम के करीब में ही, वहाँ पास में ही आनंदमयी माँ का भी आश्रम था, कुछ ब्लॉक्स दूर। तो महाराज जी ने हमको आनंदमयी माँ के पास भेजा। हमको ये नहीं पता था कि आनंदमयी माँ के आश्रम में जाकर क्या करना है और वहाँ पर क्या क्या होगा। हम लोग ने साफ सुथरे कपड़े पहने और हम कुछ लोग थे जो वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम भीड़ में ही जाकर खड़े हो गए। आनंदमयी माँ जो थी वो, उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वो सबको दर्शन दे रही थी। वहाँ का जो माहौल था वो बहुत पीसफुल था, बहुत शांति वाला था, और इतना वास्ट था, और इतना ज़्यादा हमको अपनापन सा लग रहा था और फेमिलियर लग रहा था, जैसा कि हम अपने घर में रसोई में अपनी माँ के साथ बैठे हुए हों। ऐसा माहौल था आनंदमयी माँ के आश्रम का। और हम लोग वहाँ जितने दिन थे वृंदावन में, तब हर रोज़ आनंदमयी माँ के दर्शन के लिए जाते थे। वो कुछ जो दर्शन के दिन थे जब हम वहाँ जाते थे, हमको इतना अच्छा लगता था वहाँ जाना, और हमें ऐसा लगा कि हम एक सच्चे संत के पास आए हैं, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो इतनी ग्रेसफुल थी और इतनी ज़्यादा एक प्योर सेंट थी। मिड 70s में, 70 से ऊपर थी उनकी उम्र उस टाइम,
और जैसा कि इस उम्र में हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, वैसे ही उनका भी शरीर कमज़ोर था दिखने में। और एक बूढ़ी औरत, नॉर्मल एक ओल्ड लेडी की तरह दिखती थी। और जो उनके दर्शन करने उनके भक्तजन आते थे, वो उनकी तरफ बहुत ही प्रोटेक्टिव थे। और फॉरेनर्स की तरफ वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उनको लगता था कि फॉरेनर्स इम्प्योर हैं। और उनको ये भी नहीं अच्छा लगता था कि कोई वेस्टर्नर, कोई फॉरेनर आके माँ आनंदमयी के पाँव छुए, उनके चरण छुए या कोई चढ़ावा चढ़ाए उनको। उनमें बहुत ऐसे लगता था कि बहुत ही शक्तिशाली एक सेंट थी वो, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी जो उनसे बहती हुई हमें फील होती थी। उनमें बिल्कुल ईगो नहीं थी और सब भक्त उनका बहुत केयर करते थे, वहाँ बैठकर उनका बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वो अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी। वो हंसती थी, गाती थी, चुप भी रहती थी, लेकिन एक बार वो इतना ज़्यादा साइलेंस में चली गई कि 6 महीने तक वो साइलेंट रही, चुप रही। काफ़ी समय तक जो वो भोजन करती थी, वो सिर्फ अन्न के 9 दाने खाती थी, चावल के 9 दाने हर रोज़ खाती थी। और एक तरफ उनमें बहुत डिटैचमेंट भी थी, तो दूसरी तरफ वो सबका बहुत ख्याल भी रखती थी, वो एंगेज्ड भी रहती थी। उसी शून्य में रहते हुए भी वो बहुत स्नेह और प्यार दिखाती थी अपने भक्तों को, और उनके मूड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते थे। हाँ। और उनके उनकी प्रेजेंस में हमारा जो हमारी फीलिंग्स होती थी, बहुत ऐसा लगता था कि एक हमारे अंदर प्रेम भर रहा है, शांति भर रही है, और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, हमें परफेक्शन मिलती थी। उनकी हर बॉडी की जो भी उनकी मूवमेंट होती थी, उसमें एक मुद्रा होती थी, और उनकी प्रेजेंस में हमें ऐसा लगता था कि हम ईश्वर को फील कर पा रहे हैं। परमहंस योगानंद जो थे, वो आनंदमयी माँ से कैलकाटा में मिले थे 1946 में, और उन्होंने उनको अपने रांची में आश्रम में भी इनवाइट किया था, और जो भी उनकी वार्तालाप हुई थी, उनके साथ बातचीत हुई थी, उसको उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो जब योगानंद परमहंस ने उनसे पूछा कि मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आनंदमयी माँ ने कहा कि मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, और वो परमहंस योगानंद को फादर कहकर पुकारती थी, और वो उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। वो कहती थी कि इस धरती पर आने से पहले भी मैं वही थी, जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी, जब मैं बड़ी हुई तब भी मैं वही थी, और आगे चलकर भी मैं सेम रहूंगी। मेरे मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं वही रहूंगी, और आपके सामने भी मैं वही सेम हूँ। मुझे आनंदमयी माँ के बारे में महाराज जी से पता चला। मैं महाराज जी को अपना गुरु मानता था, और लेकिन कभी भी हम लोगों ने एक गुरु में अपनी माँ, उनको अपनी माँ की तरह नहीं समझा था, हम लोग उनको अपने फादर की तरह समझे थे। महाराज जी कहते थे कि सब विमेन को, लेडीज को अपनी माँ की तरह ही हमें देखना चाहिए, उसी दृष्टि से देखना चाहिए। इस महाराज जी के स्टेटमेंट से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा
चेंज आया था, मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा चेंज आया था। यदि हम आनंदमयी माँ को एक एनलाइटन या रियलाइज्ड बीइंग कहें तो ये बहुत छोटा होगा कहना उनके लिए, वो कहीं ज़्यादा थी उनसे, और वो सच में एक देवी का रूप थी, एक उनमें देवी की क्वालिटीज़ थी, गॉडेस की क्वालिटीज़ थी। और महाराज जी हमेशा यही कहते थे कि उनके बारे में बहुत ही स्नेह से और आदर से बात करते थे, क्योंकि उन्हें महाराज जी कहते थे कि आनंदमयी माँ एक देवी स्वरूप है। मैंने महाराज जी को और माँ को कभी इकट्ठे नहीं देखा, लेकिन मुझे एक बार एक स्वप्न आया था जो बहुत ही क्लियर था, और उस स्वप्न में मैंने देखा था कि दोनों छोटे बच्चों की तरह, बहुत ही छोटे बच्चों की तरह हंस खेल रहे हैं, और बच्चों की तरह ही एंड में उस ड्रीम में मैंने देखा कि दोनों हाथ पकड़ के बच्चों की तरह चले जाते हैं। और जब मेरा स्वप्न टूटा, मेरी नींद खुली, तो मैं बहुत ही इंटेंस जॉय, बहुत ही खुशी, प्रसन्नता फील कर रहा था। उस सुबह मैंने महाराज जी को देखा कि महाराज जी लेडीज को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे भोजन नहीं कराती, मैं जाऊंगा, मैं माँ के पास जाऊंगा और वो मुझे भोजन करवाएंगी। और बार बार यही बात महाराज जी रिपीट कर रहे थे। और उसके बाद महाराज जी चल दिए आनंदमयी माँ के आश्रम, और ये कहते कहते कि माँ मुझे भोजन करवाएंगी, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, माँ मुझे भोजन करवाएंगी। महाराज जी आनंदमयी माँ के आश्रम में पहुंचे, उनके रूम में सीधा दाखिल हो गए, और वहाँ पे बहुत दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। वहाँ पर एंटर किया महाराज जी ने। एक 5 साल के बच्चे की तरह महाराज जी का बिहेवियर था, और कंबल ओढ़े हुए थे, कंबल इधर उधर उनका उड़ रहा था। और जाते ही उनके रूम में माँ से महाराज जी ने कहा कि माँ मुझे भोजन दो, और उसके तुरंत बाद माँ ने भोजन मंगवाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मील उनके आगे प्रस्तुत किया, बहुत ज़्यादा भोजन। महाराज जी ने टेस्ट किया और फिर उस भोजन को प्रसाद के तौर पर सब भक्तों में बांट दिया। और वो महाराज जी उन्हें माँ बुला रहे थे, और माँ उन्हें पिता करके, फादर करके बुला रही थी। जैसे कि रामाकृष्ण के साथ हुआ, वैसे आनंदमयी माँ के साथ भी हुआ कि उन दिनों उनकी बचपन में ही उनका विवाह हो गया था, और उनका जो नाम था निर्मला था। अरेंज मैरिज उनकी अरेंज हुई थी, बहुत छोटी थी, बचपन में हुआ था। अपने ब्रदर इन लॉ की फैमिली के साथ वो रहती रही, और उनके जो हस्बैंड थे, आनंदमयी माँ के हस्बैंड, वो ढाका ट्रैवल करते थे काम की तलाश में। और जब उनको मैनेजर की एक पोजीशन मिल गई वहाँ के एक प्राइवेट पार्क में ढाका में, जिसका नाम था शाहबाग गार्डन, तब निर्मला ने उनको ज्वाइन किया, और वहाँ पे उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई। एक बंगाली हाउसवाइफ की जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं, घर का सारा काम वो करती थी, और कभी कभी वो समाधि में भी चली जाती थी, और कॉम्प्लेक्स योग मुद्रा भी और योग आसन भी परफॉर्म करती थी। और वो ज़मीन पर, फर्श पर लौट जाती थी, वो इतनी एक्सटेटिक हो जाती थी। और जब उनका भोजन बन रहा होता था तो वो खाना जल जाता था, लेकिन उनको ऐसा होश नहीं होता था, जैसे बिल्कुल होश खो बैठती थी, आसपास बाहर क्या हो रहा है फिजिकल प्लेन का उनको कोई होश नहीं होता था। उनके हस्बैंड ने उनकी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को पहचाना, और उन्होंने रियलाइज़ की ये बात, और वो उनके हस्बैंड भी, आनंदमयी माँ के हस्बैंड जो उनके पति थे, वो भी उनके शिष्य बन गए। शुरू में जब वो यंग थी आनंदमयी माँ, तो वो बहुत सुंदर दिखती थी, और उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। भगवान से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, जैसे एक नशा होता है, और वो उनके चेहरे पर टपकता था, वो नूर टपकता था। और उनके जो पति की दृष्टि थी उनकी तरफ, उसमें भी कभी भी किसी भी प्रकार के
वो ख्याल नहीं आए जैसे कि एक पति अपनी पत्नी के लिए सोचता है। और जब हल्के फुल्के भी इस तरह के ख्याल आते थे तो आनंदमयी माँ समाधि में चली जाती थी। अनकॉन्शियसली भी अगर उनके मन में ऐसा आता था तो माँ समाधि में चली जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पे वो रुकी हुई थी, जो गोविंदा जी का जो मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर, उसके फर्स्ट फ्लोर पे उसके पास में फर्स्ट फ्लोर पे वो रुकी हुई थी। और जब राइटर यानी कि रामदास जी जब उनके रूम में पहुंचे, उनके साथ 2 लेडीज थी। 11 बजे करीब रात का समय था और एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा था। जैसे ही रूम में एंटर किए तो वहाँ देखा कि आनंदमयी माँ बैठी हैं, मुस्कुराती हुई बैठी हैं और उनका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है और चेहरे पर बहुत तेज था। और उनमें से जैसे कि एक रोशनी उनको ऐसी इतना ज़्यादा तेज था कि ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वो जो बल्ब की रोशनी है वो भी फीकी पड़ रही थी। इतना ज़्यादा उनसे तेज टपक रहा था और इतना ज़्यादा नूर था उनकी पर्सनालिटी में और चेहरे पर। किसी भी मनुष्य से जब इस तरह का इतना ज़्यादा नूर और इतना ज़्यादा रोशनी, इतना ज़्यादा तेज, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। हमने पहले ऐसा नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था कि एक देवी बैठी हुई हो वहां पर। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, लेकिन वो कहती थी कि मैं ये खुद नहीं करती हूँ और ये अपने आप हो जाता है। और वो कहती थी कि मैं सिर्फ अपने ख्याल को फॉलो करती हूँ, जो इंट्यूशन होती है, जो मेरे अंदर से प्रेरणा मिलती है, मैं सिर्फ उससे फॉलो करती हूँ। उनमें इतनी ज़्यादा प्योरिटी थी और दिव्यता थी कि भक्तजन जो हैं उनकी तरफ खींचे चले आते थे और उनके आसपास उन्हें घेरे रहते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास भक्तजन काफ़ी अक्सर आते थे और वहाँ पर कीर्तन किया करते थे। माँ भोजन तैयार करती थी और प्रसाद को सबके साथ बांटती थी। जब भी भगवान का नाम लिया जाता था तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था। सारे काम छोड़कर वो झूमने लगती थी। कभी कभी वो एकदम स्टिल हो जाती थी और कभी कभी अपने आप को बैलेंस भी कर लेती थी और उनकी आंखें जैसे बिना पलक झपकाए वो एकदम स्टिल हो जाती थी। कभी कभी वो योग आसन में और मुद्रा में चली जाती थी और कभी तो एकदम स्टिल हो जाती थी और कभी कभी एक उनकी बॉडी जो है एक झूमने लगती थी रिदमिकली। उनको देखना हम सबको बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी तो हम उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा मूव करती थी, इतनी तेज़ी से मूव करती थी कि हमें अच्छे से देख पाना भी मुश्किल हो जाता था। उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पाना भी मुश्किल हो जाता था। और वो बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है, उससे वो अनजान हो जाती थी। जो जैसे कि हिंदू हाउसवाइफ्स होती हैं हमारे वो अपना चेहरे को कवर करके रखती हैं, तो उसी तरह से वो भी स्ट्रेंजर्स के सामने, अनजान लोगों के सामने अपना सिर ढक के और फेस ढक कर रखती थी। डॉनी गोलमैन जो थे, जगन्नाथ दास, वो और मैं आनंदमयी माँ के आश्रम में गए, कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल गए। वहाँ पर देखा कि माँ बैठी थी और सीढ़ियों में बैठी थी, छोटे से मंदिर की सीढ़ियों में, और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रही थी। काफ़ी सारे वहाँ भक्त लोग और भी लोग थे। और जब वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से चले गए तब अंदर के कमरे में जब कमरे में चली गई आनंदमयी माँ, तो मैं और डैनी वहाँ पर बात कर रहे थे और हम 2 ही रह गए थे। और दर्शन एरिया में
शाम का समय हो रहा था, भोजन की तैयारी हो रही थी, भोजन बनने की तैयारी हो रही थी, शंख बजने शुरू हो गए थे, घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी शाम की पूजा के लिए। और बीच-बीच में हमें माँ के दर्शन भी होते थे। वो हमें अब सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद वस्त्रों में दिखती थी, एक जगह से दूसरी जगह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते हुए। उनको देखते ही हमें बहुत ज़्यादा हम ब्लिसफुल फ़ील करते थे। जब हमें जाने के लिए कहा गया, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था, तो हम लोग उठे और उसी वक़्त हम जाने के लिए जैसे ही उठे, उसी वक़्त माँ आ गई और उन्होंने हमारी तरफ देखा और हमें अपने चरण छूने दिए। एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट था वो। हम लोग मंदिर से वापस चले आए, सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन किए और हमारे अंदर भी जैसे कुछ तार बज उठते हैं, कुछ ऐसे लगा कि हमारे अंदर भी हम लोगों ने कुछ डीप फील किया और वो था प्रेम, लव फील किया था हमने। 1927 से माँ आनंदमयी और उनके हस्बैंड और एक भक्त थे जिनका नाम था भाई जी, वो इंडिया में ट्रैवल करने शुरू हुए और नेक्स्ट 55 वर्षों के लिए वो एक इस तरह का जीवन जीती रही कि एक जगह से दूसरे स्थान पर वो तीर्थ करती रही और यात्रा करती रही। तरह तरह के लोगों से उनके तरह तरह के लोग उनके टच में आए और लोगों ने उनके दर्शन किए, उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस मांगी और अलग अलग समय पर उनमें अलग अलग देवियों की क्वालिटीज़ भी उनमें नज़र आती थी और इस तरह से वो मैनिफेस्ट भी करती थी उनके एस्पेक्ट्स, जो डिवाइन एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उमा के या राधा के या कृष्ण के या राधा के या काली के या सीता के, ये सारे गुण या शक्ति जो होती हैं उनकी, उन सारे क्वालिटीज़ उनमें दिखाई देते थे। कभी कभी दूसरे संतों की जो क्वालिटीज़ थी वो भी उनमें उभर कर आती थी और बहुत ज़्यादा उनमें पेशेंस थी, धैर्य बहुत था, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति थी, कभी वो थकती नहीं थी और जैसा कि उन्होंने योगानंद जी से कहा था कि आई एम द सेम, मैं वही हूँ, ये हर समय और हर जगह के लिए सच था कि मैं वही हूँ, हमेशा वो वही हैं, ऐसा वो कहती थी और आगे भी वो हमेशा वही सेम रहेंगी। हर भक्त, हर दर्शनार्थी के लिए वो उसके साथ अलग अलग प्रकार से बात करती थी। जैसे कि पंडित से अगर बात करेंगी किसी, तो उपनिषद के बारे में बात करेंगी, एक किसान से बात करेंगी तो उसकी जो बेटी है उसके विवाह की बात करेंगे, एक साधु से बात करेंगी तो वो उसका दिन में क्या पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है उसके बारे में बात करती हैं और हर एक व्यक्ति को वो अलग अलग तरीके से उसके उनके अपने या उस व्यक्ति के लेवल पर वो उसको गाइड करती थी, उनको मार्गदर्शन देती थी। माँ कहती थी कि आश्रम में रात को बना हुआ भोजन रात को नहीं रखना चाहिए, फ्रेश बनना चाहिए और एक बार किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने एक्स्ट्रा आटे की बोरी रख दी तो कि माँ को शायद ज़रूरत ना हो, तो 9 बजे का रात का वक्त था जब वो बाहर आई और उन्होंने पूड़ियाँ मांगी और
एक जो साधारण व्यक्ति होगा वो 2-4 पूड़ियाँ खाएगा, लेकिन माँ एक के बाद एक के बाद एक और पूड़ियाँ उन्होंने खा ली। उन्होंने 64 पूड़ियाँ खा ली। तो ये था, और उन्होंने कहा कि अगर मैं पेट भर कर खाऊंगी तो मैं पूरा ब्रह्मांड भी खा सकती हूँ। तो ये मैं पढ़ रही थी बी लव नाउ में से। बी लव नाउ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेरी पसंदीदा बुक है, रामदास जी की लिखी हुई है, बी लव नाउ। उसमें से चैप्टर है, चैप्टर का नाम था आनंदमयी माँ। तो आज बस इतना ही, और कल फिर कुछ और जो भी जैसे भी प्रेरणा होगी, जैसे भी जो भी कुछ पढ़ूंगी और शेयर आपसे करना चाहूँगी वो मैं करूँगी। अमित जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं है ये, वी लव नाउ है, रामदास जी की।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सफल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। सब संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट सिद्धि गोविंद के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघु रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सरल सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति राम। राम लखन सीता सहित, हृदय बसई सुरभूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल कमंडल राम निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और कुछ और किसी भी बुक में से आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी मैं पढ़ूंगी। तब तक के लिए महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि, गुड नाइट।